India begins Operation Ajay. 212 Indian citizens have landed in Delhi. This was the first batch that had registered to return to India ever since the situation turned horrific, specifically after 7th October attack in Israel. You can see Minister Rajiv Chandrasekhar, who is at the airport to welcome the Indian citizens who have returned. Union Minister Chandrasekhar at the airport to receive them. Remember, for now, 18,000 Indian nationals live in Israel, including a student community, a very thriving, visible business community. There are also professionals who reside in Israel in different parts of the country. The first batch had already registered when on the first day on 7th October the attack had happened, and that's why chartered aircraft and more arrangements have been put in place for as many as who would like to come. So it will not be all 18,000 possibly, but all those who have said that they want to return to India meanwhile, while the war is on, those have been getting this help. So of course, smiles, remember, coming out of the war zone, at least for the temporary time. Families, children, parents being welcomed by Rajiv Chandrasekhar there. It's a sigh of relief, remember, to be returning to a place which is peaceful, which is your home, and that where there is no siren, bomb or shelling. I've been there from last 10 months now, and with that evacuation, Air India protected us, and now we are protecting our Indians over there, and brought us first evacuation flight today. Situation is very tense, but now it is there. We have to face it. हाइफा में कल रात में एक बार सायरन बजा था, तो स्टूडेंट्स थोड़े घबरा गए थे, बट फिर बाद में जब पता चला कि वो एक फॉल्स अलार्म था, तो हाइफा में थोड़ी सुरक्षित फील कर रहे थे हम लोग, और टेक्नियन में भी काफ़ी सुरक्षा फील करा रही थी. बट उसके बाद जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो स्टेप लिया हम लोग को वहाँ से निकालने के लिए, ऑल ऑफ अ सडन वो बहुत सही टाइम पे लिया, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अगर एक दिन और या 2 दिन और रुकते तो मे बी सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो सकती थी वहाँ पे. दिस इज कम्प्लीटली इन कीपिंग विद आवर प्राइम मिनिस्टर्स विजन, प्राइम मिनिस्टर्स डिटर्मिनेशन that our government, his government, will never leave any Indian behind. Any Indian anywhere in the world that finds himself or herself in harm's way, our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely. And I'm very glad this plane load of students and Indians have managed to fly back safely. So Operation Ajay is the name. Just for the background for our viewers, Ajay means invincible. It is also another name for Lord Krishna, synonymous with the conqueror of life and death. So what an apt name at a situation like this, when there is clearly those who are trying to evade death, trying to fight for their life. And the Indian government, as always, in the past we've had Operation Devi Shakti. We've had during the Wuhan airlift as well, and ever since from the Kuwait airlift of 1990 to 2023, whether it's Afghanistan, whether it's Libya, whether it's Lebanon, whether here now in Afghanistan about 2 years ago, Indian government has constantly shown, and different governments have shown, that there is coordination to ensure that your citizens are safe and secure. And what a heartwarming moment there. This little child arriving with his family, with his father, meeting the minister, and those who have been able to live in Israel. You can see acknowledgements, thank yous and smiles. To be living now in a country, at least for till now, so that they can possibly later head back. Look at what Gaza is looking like right now. There is bombing, shelling in northern Israel also, apart from the horrific massacre in southern Israel. It is not really the moment to be able to be living there in peace, but there are constantly sirens blowing in the air. And now, as these batch return, we are being told this is the first batch. So depending on how many requests reach them via the embassy, so the first batch, to give you, and I'll help you understand the protocol, the first batch appeared to have already registered on the first day itself to return. That's why immediately they realized that there are requests coming in, and the first aircraft was arranged. They were sent an email, they were notified, they were registered, they were asked to come to the embassy. Here on, there are 24-hour emergency helplines, emergency control rooms that have been set up as well, and they are coordinating the situation on the ground. Let me now go across on the ground. My colleague Himanshu spoke to some of the citizens who've returned. बॉर्डर के इलाकों में हो रहा था और सेंट्रल इजराइल में बहुत ज़्यादा
डर लगा था क्या शासन? बिल्कुल बिल्कुल डर तो। फैमिली आपके संपर्क में थी, परिवार का फोन कब आया? परिवार का फोन तुरंत आया, जो कि यहाँ की मीडिया बहुत अच्छी मीडिया है, जो कि कवरेज लगातार अभी भी दिखा रही है। सरकार की इस पहल के बारे में क्या कहेंगे? सरकार की जो ऑपरेशन पहल है उसके लिए हम हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सरकार का, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि समय आते उन्होंने हम लोगों को सुरक्षित अपने देश में पहुंचा दिया, क्योंकि कोई कह नहीं सकता है कि कब स्थितियां वहां पे परिवर्तित हों। दोबारा जाना चाहेंगे? दोबारा हाँ, अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो जरूर जाएंगे, क्योंकि अभी तो अचानक से सब कुछ छोड़ के आए हैं। अचानक से सब कुछ छोड़ के आए हैं और शाश्वत का कहना है कि अगर स्थिति नॉर्मल होती है तो जरूर जाना चाहेंगे। डर लगा था, इनका कहना है। कई सारे यात्री यहाँ पर अब बाहर निकल है। ऑपरेशन अजय का 212 यात्रियों का पहला जत्था बाहर आ चुका है। अराइवल पे मौजूद यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर कुछ फैमिली मौजूद है जिनसे हम बात करते हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर वो क्या कुछ महसूस किया उन्होंने इजराइल के अंदर और कैसे कितनी मुसीबतों के बाद वो देश अपने वापस लौटे हैं। तो आप देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये अराइवल पॉइंट है। यहाँ पर तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए, सीआईएसएफ पूरी इस पूरे इलाके को कवर करके रखा गया है और जो भी यात्री आ रहे हैं उनके फैमिली के लोग यहाँ पर पहले से ही पहुंचे हुए हैं। हम एक लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से। Right, so you can look at about 212 Indian nationals who have returned. They were received by Minister Rajiv Chandrasekhar at the airport. Smiles, acknowledgements, a little bit of chat to likely understand for the minister as well what sort of situation was on the ground. And remember, previously also in Afghanistan, for example, specifically when the batches were coming in, ministers were given responsibility. Some of them had gone as far as close to the ports or the airports where they could receive the batches that were leaving. Whether it was a Wuhan airlift as well, there have been responsibilities assigned to ministers. For example, here, to ensure that citizens don't just return. They have someone from the government representing to be receiving them, talking to them, perhaps getting a moment to understand what exactly is unfolding there. Listen in again to Himanshu now speaking to more of Indian nationals. So, हमारा जो लोकेशन था वो सेंट्रल था. So, काफ़ी लेस अफेक्टेड था कंपैरेटिवली जो साउथ का जो रीजन था और जो नॉर्थ के रीजन थे. बट हमने हर दिन हमने सायरन सुने विथ सो वो थोड़ा सा पैनिकिंग. हमास का जिस दिन अटैक हुआ उससे लेकर के फिर आगे जब तक आप यहाँ पे आए, क्या आपको डर लगा या क्या कुछ आपने महसूस किया? तो पहले दिन जो अटैक स्टार्ट हुआ वो बहुत ही सुबह था, अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock जो सायरन बजे. तो उस समय तो हमें पता नहीं था कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो जानते थे ऑलरेडी, जिन्होंने पहले भी ये सायरन से सुने थे. तो वो जानते थे कि क्या करना है करके. सो अर्ली मॉर्निंग जब सायरन बजा हमें लगा मोस्टली कि फायर अलार्म में करके. सो मैं जैसे मुझे पता नहीं था क्या करना है, सो मेरी फ्रेंड्स लोगों ने नॉक किया एंड देन आई रियलाइज कि शेल्टर जाना है करके. तो वो फर्स्ट डे वाज थोड़ा था पैनिकिंग था. पूरे आप जिस तरीके से वापस आए इस पे आप क्या कहें? तरीके से सरकार ये जो जर्नी अरेंज की गई है ये बहुत ही अच्छी जर्नी अरेंज की गई है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे तरीके जाने के लिए. तो एमिरेट वॉज द ओनली वे कि हम वापस आ सकते थे. और एमिरेट उस समय टिकट्स अवेलेबल नहीं थे एंड इट वाज गेटिंग बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जा रहे थे. सो मैं इंडियन गवर्नमेंट को और जी को थैंक यू कहना चाहती हूँ, बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं था अगर इंडियन गवर्नमेंट ये ऑर्गेनाइज नहीं करती. सो थैंक यू कहना चाहते हैं आप. ठीक है, तो ये देखिए थैंक यू कहना चाहती, इनका कहना है कि जब टिकट था वो बड़ी तेजी से. दूती. कहाँ पे रहते थे? साउदर्न पार्ट में बेरशेवा करके एक जगह. जहाँ पर हाँ, जहाँ पर मतलब जहाँ पर थे वहां से वो इम्पैक्ट पॉइंट पे कितनी दूर? वो तो हर जगह पे ही हो रहा है. मैं जहाँ पे रह रही थी वो साउदर्न पार्ट में है, बेरशेवा में. उधर भी रॉकेट्स आ रहे थे. रॉकेट्स आ रहे थे, तुमने देखा? हाँ, देख तो नहीं पाए क्योंकि हम लोगों को शेल्टर में जाना था. ईच टाइम देयर वाज अ साइरन. तरीके की इंफॉर्मेशंस निकल के आ
किस बात पे, मतलब रॉकेट? इंफॉर्मेशन क्या आ रही थी, जैसे लोकल अथॉरिटीज जो है वो क्या आपको अवेयर कर रही थी, क्या वो आपको? यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, वी आर रिसर्चर्स, सो वी वर जस्ट नोटिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी to take proper measure. Every time there is a siren, we had to go to the shelter, and we went to the shelter each time there was a siren, and the normal life is of course paused. Going to the supermarket or doing groceries not the same anymore. It's pretty scary actually. In the last, this time it's pretty serious because Israelis are, they're mad because of the infiltration, and it's very brutal what happened in Gaza area. So yeah, it impacted normal life. Our universities are closed. We cannot go to work. So it was best for us to come back to India basically. गवर्नमेंट से ये शुरुआत की गई ऑपरेशन अजय, जब आपको पता लगा तो फिर आप कैसे पता लगा और कैसे आप इसमें ज्वाइन कर पाए, कैसे वापस? So हम लोगों को पता चला actually 24 hours before, just in one day. We had to arrange everything. The embassy contacted us. We had to fill a form. And after the registration, they just let us know that we are selected for the first flight. I don't know what was the procedure, but they just called us from the embassy, and we were like 200 some people, and we boarded the first flight basically. Flight. Okay. तो पूजा, आप देखिए ये तमाम और भी यात्री हैं जो वापस आ रहे हैं। हम कुछ से बात, सर आप इजराइल से आ रहे हैं? नो। देखिए यहाँ से चूंकि अराइवल है, कई और भी फ्लाइट्स हैं जो यहाँ पर आई हैं, तो कई सारे हमने देखा जो स्टूडेंट यहाँ पर पहुंचे हैं वो ज्यादातर जो हैं वो सेंट्रल इजराइल में थे, जो पढ़ाई कर रहे थे और उनके फैमिली के लोग लगातार उनके संपर्क में थे, उनसे बात कर रहे थे। तो ये पूरा इलाका देखेंगे एयरपोर्ट का, तो यहाँ पर कई हिमांशु जो ज्यादातर है 212 में जो पैसेंजर्स आए हैं इजराइल से इंडिया, क्या ज्यादातर वो स्टूडेंट्स ही हैं? क्योंकि वहां पे प्रोफेशनल्स और बिजनेस कम्युनिटी भी है, तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि पहले बैच में ज्यादा आए हैं। बिल्कुल 212, क्योंकि हमने तकरीबन कई छात्रों उनसे बात की, 10 से 12 से बात की, और उनका यही कहना था पूजा कि वो कोई रिसर्चर है, कोई स्कॉलर है, कोई स्टूडेंट है जो पिछले 3 या 4 सालों से वहां पर रह करके पढ़ाई का काम कर रहा है। तो इस तरीके की जो छात्र हैं उनको, और ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, सिर्फ 24 घंटे का वक्त हुआ था जब उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी, और लोगों का कहना है कि एम्बेसी ने उनकी बहुत मदद की। क्या नाम है आपका? सॉरी, मैं और कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं बहुत, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एग्जॉस्ट कर चुके हैं, थक गए हैं वहां से यहाँ आने के बाद। तो तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और लगातार ये अभी पहला जत्था है जो ऑपरेशन अजय की शुरुआत हुई है। ये पहला जत्था है जो अपने देश पहुंचा है, और उनके फैमिली के लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने राहत की सांस यहाँ पर ली है, क्योंकि लगातार जब से हमास ने हमला किया था तब से परिवार के लोग बेहद डर में थे। लेकिन जो ज्यादातर यहाँ पे उनका ये कहना है कि जो सेंट्रल इजराइल था वो उतना इफेक्ट नहीं था, क्योंकि बॉर्डर का एरिया जो था वो ज्यादा इफेक्टेड था। क्या आप भी इजराइल से ही आ रहे हैं? आप स्टूडेंट थे वहाँ पे? कहाँ पे रहते थे? मैं टेल अवीव में। टेल अवीव में, तो वहां पर तो काफी इफेक्ट हुआ। कब आपको पता लगा था सर? आप क्या कर रहे थे उस दिन? मैं तो नॉर्मल रूटीन चल रही थी मेरी, एंड एकदम ही सायरन बजने लगा, और हमें समझ नहीं आया। बाद में न्यूज में देखा कि गाजा ने अटैक कर दिया इजराइल पे। उसके बाद सायरन बजा, तो फिर आप लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होता है? तो हमें इंस्ट्रक्शन मिली है कि जब भी सायरन बजे तो हर फ्लोर पे शेल्टर रूम्स होते हैं। हर फ्लोर पे और हर बिल्डिंग में भी, तो वहां पे जाना है और एटलीस्ट 10 मिनट तक वहां पे रुकना है सायरन बंद होने के बाद। तो इसके पहले कब से हैं आप इजराइल? ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। इसके पहले कभी सायरन की आवाज? नहीं। आपके कुछ लोकल फ्रेंड्स भी हैं जो इजराइल के रहने वाले? हाँ। उनसे कोई जानकारी मिली आपको? उन्होंने कभी बताया कि उस दिन क्या हुआ? हम मतलब है, बट सबको काफी डर रहे थे सिचुएशन से, तो इन जनरल डर ही था सब। ऑपरेशन अजय की शुरुआत हुई, कब आपको पता लगा और किस तरीके से आपने इनिशिएट किया, और कितनी हेल्प आपको अथॉरिटी की तरफ से की? शायद 3-4 दिन पहले, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट कुछ दिन पहले किया था। फिर हमें एक फॉर्म दिया गया था जिसे भरना था हमें, और फॉर्म भर के अगले दिन ही हमें एक मेल आ गई थी जिसके थ्रू हमें
एयरपोर्ट से इवैक्यूएट करवा रहे थे। तो अथॉरिटीज की पूरी हेल्प? हाँ, बिल्कुल। इंडियन गवर्नमेंट, मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट का कि हमें सेफली यहाँ पहुँचा दिया। नाम क्या आपका? विशेष। विशेष कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं पंजाब से। पंजाब से। तो आप देखिए, पंजाब के विशेष थैंक यू कहना चाहते हैं। इस तरीके के कई सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर अब पहुंच चुके हैं। ज्यादातर देखिए पूजा, हमने जिनसे भी बात की वो छात्र हैं जो कितने पहुंचे हुए हैं और वो बेहद कहना है कसम वक्त पहले उन्हें इसकी जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन अथॉरिटीज की तरफ से उन्हें पूरी हेल्प की गई। हम आगे आते हैं, कुछ और लोगों से, कुछ और छात्रों से बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर कुछ उन्होंने वहां पर कुछ किया, क्या उन्होंने फेस किया पिछले एक हफ्ते के दौरान। देखिए यहाँ पर कुछ और रजिस्टर्ड किया। All right. Himanshu, you keep getting the voices as Himanshu is speaking to so many Indian nationals. 212 for now. This is only the first batch. More arrangements are likely to take place depending on the situation.